So the questionnaire is for the circuit shown below, mu n COX is equal to 2.5 times of mu p COX and magnitude of threshold voltage is equal to 1 volt, lambda is equal to 0, gamma is equal to 0, W by L suffix n is equal to W by L suffix p full stop. The output voltage V out is fill in the blanks volt and answer should be up to 2 decimal places. So यहाँ पर ये हमारा सर्किट दिया हुआ है और ये लेमडा इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि फॉर दिस मॉसफेट ऑपरेशन देयर इज नो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉर दिस गामा इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि इसमें हम लोग बॉडी बायस इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एस्पेक्ट रेशियो W by L for n transistor for NMOS transistor is equal to the W by L ratio for this PMOS transistor is same। so यहाँ पर हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा M1 ट्रांजिस्टर क्या है, दिस इज P चैनल MOSFET, सो दिस इज कॉल्ड हियर एज ए PMOS। और ये क्या है, दिस इज N चैनल MOSFET, सो दिस इज कॉल्ड हियर एज ए NMOS ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे ये PMOS ट्रांजिस्टर का ये टर्मिनल हमारा क्या है, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है एंड दिस इज देयर गेट टर्मिनल एंड दिस इज देयर ड्रेन टर्मिनल। For this M2 transistor as a NMOS, this is their gate terminal, this is their source terminal and this is their drain terminal. So in this circuit it is shown here the drain gate for both the transistor is sorted together with this output voltage V0. So due to that reason, if the drain and gate is sorted together for this NMOS transistor as well as for the PMOS transistor, then it is indicating that this transistor is working into saturation region। इसका मतलब है कि PMOS NMOS दोनों हमारा saturation region में काम कर रहा है क्योंकि इसका ड्रेन और गेट हमारा सॉर्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका करंट इक्वेशन। सो फॉर दिस PMOS ट्रांजिस्टर we can write it here as a 1 by 2 mu p COX W by L suffix p into VSG minus magnitude of their threshold voltage and their whole square is equal to 1 by 2 mu n COX W by L suffix n into VGS। सो यहाँ पर ये हमने M2 ट्रांजिस्टर माना है तो इसको हम लोग लेते हैं VGS2 माइनस VT होल स्क्वायर। इसको हमने M1 ट्रांजिस्टर माना है। सो फॉर दिस PMOS ट्रांजिस्टर वी कैन कंसिडर दिस VSG1। So this is the current equation for the PMOS transistor and this is the current equation for the NMOS transistor in the saturation region। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, this aspect ratio as a W by L suffix P is equal to W by L suffix N। So due to that reason we can cancel out these two values और ये constant 1 by 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू एन सी एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ म्यू पी सी एक्स, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दिस इज म्यू पी सी ओ एक्स वी एस जी वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी देयर होल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स वी जी एस टू माइनस वी टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको डाल सकते हैं म्यू पी सी ओ एक्स वी एस जी वन माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ दिस म्यू पी सी ओ एक्स इंटू वी जी एस टू माइनस वी टी का होल स्क्वायर। So this mu p COX and this mu p COX gets cancelled and we will get it here VSG1 minus magnitude of VT divided by this is VGS2 minus VT. So their whole square as well as their whole square in the denominator part is equal to 2.5। So यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा VSG1 minus magnitude of VT divided by VGS2 minus VT is equal to square root of 2.5 so square root of 2.5। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा
this numerator part, what we can write, this we can write it here as a VSG1 minus magnitude of VT is equal to a square root of 2.5 into VGS2 minus VT. So यहाँ पर VS1 minus VG1 minus magnitude of threshold volt is equal to root over 2.5 into VG2 माइनस VS2 माइनस VT. अब सब वैल्यू को डालते जाइए. सो यहाँ पर फॉर M1 ट्रांजिस्टर व्हाट इज दिस VS1. सो हेयर दिस VS1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट. तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे VS1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट माइनस VG1. सो इसका गेट और ये आउटपुट हमारा शॉर्टेड है. सो VG1 वी कैन राइट इट हेयर V आउटपुट माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 वोल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इंटू VG2. सो इसका VG2 क्या हो जाएगा. फॉर दिस NMOS ट्रांजिस्टर देयर गेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस V आउट. सो दिस वी विल राइट इट हेयर VO माइनस इसका सोर्स कहाँ पे कनेक्टेड है. सो दिस इज कॉल्ड VS2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. सो दिस इज हेयर 0 वोल्ट. सो VO माइनस 0 और थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है 1 वोल्ट. सो दिस इज हेयर 1 वोल्ट. यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा V आउटपुट इज इक्वल टू 1.38 वोल्ट. कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने यहाँ पर प्लस रूट ओवर 2.5 लिया है. सो हम लोग सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं. तो एक्चुअली यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.5 का तो प्लस माइनस दोनों में आएगा. तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस के वैल्यू को लिया है. आप माइनस के वैल्यू को लेकर के चेक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो इसके कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है टू ऑपरेट इनटू द सैचुरेशन रीजन. सो ड्यू टू दैट रीजन the square root of 2.5 we are taking only their positive values, not to their negative values. And after solving these equations you will get it here V output is equal to 1.38 volt. So यहाँ पर जैसा कि ये न्यूमेरिकल टाइप का आंसर है, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर as like this is going through this NAT question type so that their numerical values will become as a 1.38 volt. तो यहाँ पर जैसा कि हमने दिया है कि आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेना है तो थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल दे विल गिव द रेंज इन दिस टाइप एज लाइक 1.37 वोल्ट टू 1.40 वोल्ट. सो इन दिस काइंड ऑफ रेंज दे विल मेंशन और दे विल गिव इन देयर आंसर कीज ऑफ द एक्चुअल गेट एग्जाम. तो आपका इस बीच में कुछ भी वैल्यू आता है इस सर्किट के लिए, इसका मतलब कि वो हमारा आंसर सही है. क्योंकि कैलकुलेशन के टाइम में आप 2 डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, किसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट दैट वेरिएशन विल नॉट बी वेरी लार्ज. सो एज पर माई कैलकुलेशन व्हाट आई गॉट इट हेयर द आंसर इज 1.38. सो द न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन इज 1.38 and by this way this is the end of the explanation for this question.